Hello friends, so I am back with my new lecture, that is interlinking of rivers in India. In the short form we can call it as ILR. It is also a very important topic from your for your mains point of view, and UPSC can ask this question directly or indirectly also in any form. So you can also if any question comes related to rivers or of the floods or the drought, anything, so you can use the facts which I have mentioned in this lecture, which is interlinking of rivers. You can use this to to substantiate your answer. So that is very very important. So starting with my lecture. So as you already know that a small introduction is there. So I will give a small introduction before I will read out whatever lines I have written here in my slides. You first understand what do you mean by interlinking of rivers. So basically whatever rivers which are flowing in India, in the territory of India, so interlinking means the rivers will be linked with each other. So how they will be linked? So there is a physical channel, or there is some linking happening between some linking which will happen between different rivers, not between different among different rivers, so that the water from one river can be taken to another river, and in the same way from one to another or from another to one, so both side. So in this way interlinking will happen. So what is the purpose of interlinking we will study, but you should understand this small introduction, that is 17% of the world's population resides in India. However, India has only 4% of water. In India, it is about 17% of population of the world which is residing in India. और पानी कितना है इंडिया के पास पीने के लिए? That is only 4%. So such is the dilemma that water availability is less as compared to the population which is available, which is there residing in India. So the ambitious project of interlinking of rivers is the long cherished dream of our former Prime Minister, that is Atal Bihari Vajpayee government की ये that is the long cherished dream, and this project comprises of 14 rivers of Himalayan, of Peninsula, and 16 rivers of Himalayan. So it is basically divided into two components, that is Himalayan and Peninsular. So we will definitely study this Himalayan and Peninsular component both in my coming slides. So 16 rivers are in Himalayan and 14 in Peninsular. So now what is the current status of this interlinking? As you know that Atal Bihari Vajpayee's government was there from 1998 to till 2004. So at that point of time this project was initiated or was conceptualized by our former Prime Minister. So now it has already 15, 16, 17 years have already been passed. So what is the current status? The current status is the government of India is putting all efforts to fulfill this dream of our former PM, but still no prominent progress has been made in this direction. Okay, so still no interlinking has yet happened. It is all the entire projects which have been thought over in this project have been, they are still in their the DPR phase, project report phase. So they are not actually practically implemented. They are just in the pages or in the books or in the documents. So constitutional provisions related to interlinking of rivers. Now it is very pertinent here to understand the constitutional provisions which are related to interlinking of rivers. So subject water, I have already explained in my last lecture. The subject water is mentioned in this state list. So it is in entry 17 of list 2nd, that is state list of schedule 7. 7th schedule is for union, state and concurrent list. So it is there in the state list as the entry 17 water. However, the caveat is the exception is that entry 56 of list first, that is the union list, which says regulations and development of interstate rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the union is declared by parliament to be expedient in the public interest.
तो ये क्या कह रहा है कि एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट जो है उसकी एंट्री 56 कह रहा है कि कोई अगर इंटरस्टेट रिवर है या इंटरस्टेट रिवर वैली है, तो अगर इंटरस्टेट है तो यूनियन उसको गवर्न कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। कब गवर्न कर सकता है कि पार्लियामेंट उस रिवर वैली के ऊपर कोई लॉ लेकर आए। या तो वो कोई लॉ लेकर आए उस पर्टिकुलर समझ रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिवर वैली के ऊपर, या पार्लियामेंट कोई एक जनरल लॉ बनाए कि जिसमें कोई भी इंटरस्टेट रिवर वैली को पार्लियामेंट गवर्न कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, उस प्रोजेक्ट पे कंट्रोल यूनियन का होगा, यूनियन गवर्नमेंट का होगा। वो तभी हो सकता है अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए इंटरस्टेट रिवर वैली के लिए। अगर बनाएगा तो हो जाएगा और नहीं बनाएगा तो नहीं होगा। टिल जब तक नहीं बनाएगा नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि बनाया नहीं बनाया है, वो हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। आर्टिकल 246 and 7th schedule. So according to article 246 in our Indian constitution and 7th schedule is you already know about the three list. So the states have exclusive jurisdiction over waters in their territory. अपनी टेरिटरी में तो jurisdiction है waters का, including interstate rivers. Interstate rivers पे jurisdiction है, but केवल अपनी टेरिटरी में जो रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है केवल उसी पे ही जुरिस्डिक्शन है। मान लीजिए गंगा फ्लो हो रही है, गंगा उत्तराखंड से आती है, फिर आपके यूपी में जाती है, फिर बिहार पे जाती है, फिर बिहार से वेस्ट बंगाल में जाती है, तो बेसिकली 4 स्टेट्स में होकर फ्लो करती है। अब उत्तर प्रदेश का केवल जुरिस्डिक्शन उतना ही है जहां जितना वाटर उस टेरिटरी में गंगा का फ्लो हो रहा है। जो उत्तराखंड से पानी आ रहा है उसके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इंटरस्टेट रिवर पे जुरिस्डिक्शन जरूर है हर स्टेट का, जो स्टेट में जो रिवर फ्लो कर रही है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द वाटर विच इज रिजाइडिंग विच इज फ्लोइंग इन दैट स्टेट, द स्टेट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर दैट वाटर ओनली। दिस प्रोविजन प्रिवेंट्स यूनियन एंड जुडिशरी टू सेटल द इशू। ओके, सो ये प्रोविजन प्रिवेंट करता है यूनियन एंड जुडिशरी टू सेटल द इशू, क्योंकि आर्टिकल 246 में लिखा है देयरफॉर देयर आर सो मच डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। क्योंकि आर्टिकल 246 ये कहता है कि स्टेट्स का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। अब लेकिन साथ में एंट्री 56 कहता है कि रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट जो है यूनियन कर सकता है सब्जेक्ट की कोई लॉ बने। अब लॉ बनाया नहीं बना उसकी हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। नाउ आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक ऑन डिस्प्यूट्स। अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज, तो पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकता है रिलेटेड टू वाटर्स ऑफ इंटर रिवर वैली और रिवर्स। ठीक है, ये याद कर लीजिए, याद आपके लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है और मेंस में कहीं तो आप 1-2 लाइन्स लिख सकते हैं इसके ऊपर। नाउ व्हाट आर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस? इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इज एक आपका कन्वेंशन है CLNNUIW, that is the convention law of the the convention on the law of 1 minute. So this is the convention on the law of non-navigational uses of international water courses. यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था। The convention is related to the use and conservation of all waters that cross international boundaries. अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं, इंडस है जैसे रिवर है, आपका सतलुज है, आपकी चिनाब है। सो ये सब रिवर्स जो है ना, ये आपकी ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज वाली रिवर्स है, यानी कि ये चाइना से फ्लो करती हैं और इंडिया में आती हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान भी फ्लो करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र है जो कि चाइना से आती है। तो बहुत सारी रिवर्स हमारे देश में, नेपाल से बहुत सारी, गंडक, कोसी वगैरह नेपाल से आती हैं। तो बहुत सारी रिवर्स हमारे देश में ऐसी हैं जो कि ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं। तो ये कन्वेंशन जो है उस पर्टिकुलर वाटर को कंजर्व करने के लिए जो कि दैट क्रॉस ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज। हाउएवर द कन्वेंशन इज नॉट येट रेटिफाइड बाय USA, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज ने अभी तक इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। तो क्योंकि नहीं किया है तो यूनाइटेड नेशंस ने तो इसको अडॉप्ट किया हुआ है, बट क्योंकि इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया, तो रेटिफाई ना करने की वजह से क्या है कि ये इंडिया में लागू नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स है ना, ट्रांसनेशनल डिस्प्यूट्स हैं ऑफ शेयरिंग दी इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल रिवर, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से
जो भी ये डिस्प्यूट्स है ना, ये जो है डिस्प्यूट्स का मैनेजमेंट प्रॉपरली या सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि नहीं ये जो है साइन नहीं किया है कन्वेंशन। नाउ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, अब जो मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर लॉ बनाएगी तो ही पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है इंटरस्टेट रिवर को। सो इन केस तो ये पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया हुआ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। सो इन केस इफ अ पर्टिकुलर स्टेट और स्टेट्स अप्रोच टू दी, लेकिन ये तभी इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस यूनियन नहीं ले सकती किसी भी इंटरस्टेट रिवर का, वो तभी हो सकता है जब कोई स्टेट अप्रोच करे आपको। सो फिर पर्टिकुलर स्टेट और स्टेट्स अप्रोच टू यूनियन गवर्नमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करने के लिए स्टेट अप्रोच करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर बाय कंसल्टेशन अमंग द अग्रीड स्टेट्स। इन केस इफ इट डज नॉट वर्क देन इट मे कंस्टिट्यूट द ट्रिब्यूनल। कंसल्टेशन से यानी कि वो एक तरह से कंसल्टेंट एक्ट करेगी और स्टेट्स आपस में डिस्कस करेंगी और एमिकेबली डिस्प्यूट सेटल अगर कर सकते हैं बाय डायलॉग तो ठीक है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट अ ट्रिब्यूनल। नोट, सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन द अवार्ड ऑफ द ट्रिब्यूनल और फॉर्मूला गिवन बाय ट्रिब्यूनल बट इट कैन क्वेश्चन द वर्किंग ऑफ द ट्रिब्यूनल। यू मस्ट रिमेंबर दैट कि जो डिसीजन ट्रिब्यूनल देगा सुप्रीम कोर्ट भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकती। द कंपोजिशन ऑफ द रिवर वाटर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड बाय, उस ट्रिब्यूनल में क्या क्या होगा, कंस्टिट्यूटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and it consists of the sitting judge of Supreme Court and other two judges who can be from Supreme or High Court. तो one is the sitting judge of one constituted by the Chief Justice of India, ये constitute करेंगे, इसके अंदर Chief Justice of India होंगे और and it consist so this tribunal is constituted by Chief Justice of India. Chief Justice of India इसको constitute करेंगे, वो खुद मेंबर नहीं होंगे और इसमें मेंबर कौन होंगे, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे और कोई भी और दो जजेस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। नाउ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, दैट इज NWDA। इट वाज सेट अप इन जुलाई 1982। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। NWDA 1982 में ऑटोनोमस सोसाइटी के हिसाब से इस्टेब्लिश हुई थी अंडर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 टू कैरी आउट दी वाटर रिलेटेड, बेसिकली सर्वे वगैरह काम करेंगे, स्टडी करेंगे रिवर्स वाटर वगैरह, इसके लिए इसको मैंडेट दिया गया कि ये वाटर को स्टडी करेंगे, रिवर को स्टडी करेंगे, कैरी आउट दी स्टडीज। 1990 में NWDA को एक्स्ट्रा काम दिया गया विद द टास्क रिलेटेड टू हिमालयन, पहले पेनिनसुलर का दिया गया था, फिर हिमालयन भी ऐड कर दिया गया। In 2006, it was decided that NWDA will explore the feasibility of intra-state links under National Perspective Plan. तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है यही है बेसिकली, दिस इज द प्लान टू लिंक द वेरियस रिवर्स इन द इंडियन टेरिटरी। तो फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे लिंकिंग की। NWDA रिसेंटली ऑन 7 अक्टूबर 2016 द फंक्शंस ऑफ NWDA वर फर्दर एक्सपेंडेड टू अंडरटेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स। इम्प्लीमेंट भी ये करेगा, पहले केवल स्टडी करना था, अब इम्प्लीमेंट भी करवाना है। एंड कंप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना है, ये भी इसको जिम्मेवारी दी गई। एंड टू एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ बोरोड फंड और लोन फ्रॉम बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो जब इसे एग्जीक्यूट करना है तो इसी कोई रिपोजिटरी बना दिया गया कि जो भी फंड वगैरह आएगा वो NWDA होल्ड करेगा और ये फिर एग्जीक्यूट करेगा प्रोजेक्ट्स को। तो अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में इसको मैंडेट दिया गया केवल ये स्टडी करेगा, फिर एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी इसे दे दी गई और फंड्स भी इसको दिए गए ताकि ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करवा पाए। तो NWDA इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या फंक्शंस NWDA का है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। जो मैं बात कर रहा था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की, तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या कहता है, NRLP जो NRLP है दैट इज फॉर्मली नोन एज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। इट एनविसाज द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन्स वेयर देयर इज एबंडेंस ऑफ वाटर टू वाटर डेफिसिट बेसिन, जहाँ पे कम है, वेयर देयर इज ड्रॉट स्कार्सिटी थ्रू इंटर बेसिन रिवर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स।
प्रोजेक्ट्स के द्वारा वाटर ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम वाटर अबंडेंट एरियाज टू वाटर डेफिसिट एरियाज. It is designed to ease water shortages in western and southern India while mitigating the impacts of recurrent floods in eastern parts of the Ganga basin. Obviously ईस्टर्न वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में जहाँ पे थोड़ी पानी की कमी है वहाँ पे ये पानी दिया जाए कहाँ पे, जहाँ पे पानी की बहुतायत है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है, दैट इज़ दी ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न रीजन ऑफ गंगा बेसिन. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स was conceived more than 125 years ago by Sir Arthur Cotton mainly to facilitate trade, but it was not implemented then. बेसिकली ये कंसेप्चुलाइज किया गया था बाय सर आर्थर कॉटन के द्वारा टू फैसिलिटेट इनलैंड ट्रेड. बेसिकली क्या है ना भाई, आपको मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना है, तो अगर ये इसलिए प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज किया आर्थर कॉटन ने कि क्योंकि क्या होता है ना कि अभी रोड के साइड से अगर आप लेके जाते हैं मतलब फ्राइट अगर आप वो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड इज कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्राइट बाय बाय दी वाटर. तो वाटर से कब हो सकता है, जब रिवर आपस में इंटरलिंकिंग हो, कि आपने मान लीजिए गंगा से शुरू किया निकलना और आप नर्मदा पे पहुंच गए, नर्मदा से फिर आप जो है कावेरी तक पहुंच गए, तो रिवर इंटरलिंक कर दिया आपने ताकि इनलैंड ट्रेड फैसिलिटेट हो सके. तो ये इसलिए कंसेप्चुलाइज किया गया. लेकिन हुआ क्या, अभी तक कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर. तो एज ऑफ नाउ आज के डेट में 6 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, दैट इज द केन बेटवा का जो लिंक है, ये अभी फिजिबिलिटी स्टडी इनकी चल रही है. दमन गंगा पिंजाल की चल रही है, हम अभी बात करेंगे मैप में कि ये कहाँ कहाँ है. पर तापी नर्मदा की चल रही है, मानस संकोश तीस्ता गंगा की चल रही है, महानदी गोदावरी की चल रही है, एंड गोदावरी कावेरी की चल रही है. डेट इज द ग्रैंड एनीकट हैव बीन अंडर द एग्जामिनेशन ऑफ द अथॉरिटीज. अभी ये फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है, इसमें अभी बहुत सारे इश्यूज हैं. कभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसके बाद कोई स्टेट ऑब्जेक्शन लगा देता है, कभी कोई स्टेट लगा देता है. तो ये फिजिबिलिटी स्टडी अभी तक चल रही है, कोई धरातल पे काम नहीं हुआ है. अब नाउ 2 कंपोनेंट्स ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग है. अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है. मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखने की जरूरत है, पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है इंटरलिंकिंग ये रिवर ये इंटरस्टेट रिवर के ऊपर. बट वो तब बना सकती है जब यूनियन गवर्नमेंट इसको गवर्न कर सकती है, बट पार्लियामेंट इसके ऊपर अगर लॉ बनाए तो. अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है. हाँ, लेकिन एक लॉ जरूर बना है जो आर्टिकल 246 बोलता है कि भाई कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको आप वो कर सकते हैं. मतलब यूनियन गवर्नमेंट तब उसको जो है यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो है इंटरस्टेट रिवर को कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है. ठीक है ना. तो आपको ये जरूर याद रखना, आर्टिकल 246 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पीछे बताना भूल गया था. तो आर्टिकल 246 आपको याद रखने की जरूरत है. ठीक है. तो बेसिक आर्टिकल 246 कुछ नहीं है. आर्टिकल 246 आपका सब्जेक्ट मैटर बताता है, मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स. ठीक है ना. कुछ नहीं है, यही बताता है 246 की यूनियन लिस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करने की, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट और कॉन्करेंट दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट पे. तो 246 ही कहता है. और 262 आपको जैसे मैंने बताया 262 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉ रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली. 262 एम्पावर करता है. तो 262 की वजह से इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया 1956 पार्लियामेंट ने. लेकिन अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया है कि पार्लियामेंट ने, जो कि एंटी 56-17 जो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि कोई भी लॉ बनाएंगे तो आप किसी भी इंटरस्टेट रिवर को गवर्न कर सकते हैं. सो 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग. सो 2 कंपोनेंट्स क्या रिवर इंटरलिंकिंग के. द प्रोजेक्ट प्रपोजेस टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन टू वाटर डेफिसिट बेसिन बाय इंटरलिंकिंग ऑफ 37 rivers across the country through a network of nearly 3000 storage dams to form a gigantic South Asian water grid. एक वैसी लाइन है, ये याद कर सकते हैं आप कि भाई लिंकिंग करनी है रिवर्स की और 30,000 स्टोरेज डैम बनाना पड़ेगा इसमें.
द प्रोजेक्ट हैज 2 कंपोनेंट, जो मैंने बात की हिमालयन एंड पेनिनसुलर कंपोनेंट। अब हिमालयन कंपोनेंट क्या कह रहा है? हिमालयन कंपोनेंट कह रहा है अंडर दिस 14 प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टू लिंक डिफरेंट रिवर्स ऑफ द हिमालयन रीजन। हम डिफरेंट रिवर्स को लिंक कर पाएंगे। 14 प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया 14 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए इसमें हिमालयन में। इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर्स ऑन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर एज वेल एज देयर ट्रिब्यूटरीज, कि गंगा पे, ब्रह्मपुत्र पे और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे आपको स्टोरेज रिजर्वायर्स बनाने हैं। स्टोरेज रिजर्वायर्स बनाने का क्या मतलब होता है कि आपको बेसिकली एक स्टोरेज रिजर्वायर बना के आपको रखना है, ताकि वह पानी, उनका जो एक्सेस पानी है वो कलेक्ट कर पाए आप स्टोरेज रिजर्वायर्स में। तो आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जगह पे, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पे नहीं, मतलब 200-500 किलोमीटर की दूरी पे, 200 किलोमीटर की दूरी पे आप स्टोरेज रिजर्वायर्स बड़े बड़े आपको कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। ये इस रिवर इंटरलिंकिंग में कंसेप्चुलाइज किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे की जाती है, ये अभी मैं मैप के थ्रू बताऊंगा। इन एडिशन द इंटरलिंकिंग ऑफ गंगा एंड यमुना भी प्रपोज की गई इसमें। इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। Further, it will moderate flood in the Ganga Brahmaputra river system. It has 2 subcomponent linkages, Ganga and Brahmaputra basins to Mahanadi basin। अच्छा, हिमालयन कंपोनेंट के 2 सब कंपोनेंट्स हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को महानदी बेसिन से मिला दिया जाए, एंड ईस्टर्न गंगा ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, एंड चंबल एंड साबरमती रिवर बेसिन को मिला दिया जाए। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ मैप। सो दिस इज द मैप, एज यू कैन सी। So this is the Himalayan component, and so there are many links which have been conceptualized as per the the government of India, but right now only 6 links I have already said that 6 inter-river links are under process, or they are under going feasibility study. So in the Himalayan component, so the links which are under process, so one is the Manas, Sankosh, Teesta, Ganga, which I already said. सो मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा अगर आप देखेंगे तो दिस इज दी मानस, दिस इज दी संकोश एंड दिस इज दी तीस्ता। तो ये सारे देखेंगे आप ब्रह्मपुत्रा की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक इसमें बोला गया है कि ये मानस, संकोश, तीस्ता जो है आप ब्रह्मपुत्रा में जो मिलती हैं, तो ये कहाँ से मिला दिया गया? फ्रॉम ये अभी ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले ही ये अगर गंगा में मिल जाए, मतलब पूरी की पूरी गंगा में नहीं मिले, बट कुछ पार्ट इसका डाइवर्ट करके गंगा में भेज दिया जाए। तो इसका क्या, इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो ब्रह्मपुत्र में इतने लार्ज स्केल ऑफ फ्लड आता है, क्योंकि जब ये मानस, संकोश, तीस्ता, ये जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जब ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती हैं, तो जब पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है तो वो अपना तट काट के ये फैल जाता है पूरे जो है प्लेन्स में, असम प्लेन्स में। तो अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज का पानी जो एक्सेस में है, अगर हम इसको पहले ही गंगा में भेज दें, तो कम से कम जो असम में इतना लार्ज स्केल ऑफ फ्लड आता है, इसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा कम किया जा सकता है। तो ये इसमें कंसेप्चुअलाइज किया गया था। तो आप देखेंगे कि इसका पानी गंगा में यहाँ पे मिला दिया। देखो ये देखा, ये सो दिस इज दी मानस, संकोश, तीस्ता। सो दिस इज द लिंक, इफ यू कैन सी। सो दिस इज दी 10th पार्ट ना। सो दिस इज दी 10th। सो 10th, तो ये गंगा में यहाँ पे इन्होंने मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे गंगा में, ये गंगा, अब ये गंगा यहाँ आ रही है, यहाँ पे गंगा में मिल गया। ओके, सो बेसिकली क्या है, अगर हम देखेंगे तो मेजरली जो फ्लड आता है हमारे देश में, आपने इसको गंगा में तो मिला दिया। अब गंगा में कहाँ मिलाया? अगर आप देखेंगे मैप वाइज, सो दिस इज उत्तर प्रदेश, तो यहाँ तक कहीं उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे बिहार है। सो दिस इज बिहार। तो ये मिलाया कहाँ है आपने? बिहार के बाद मिलाया है। तो इससे क्या होगा, जो बिहार में फ्लड आता है वो भी नहीं आएगा। और अगर आप इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में लाके आपने पानी छोड़ दिया। अब वेस्ट बंगाल में क्या है ना, अब गंगा का पानी आपने गंगा यहाँ से पश्चिम बंगाल से फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ से अब यहाँ पे पानी आपका आ गया, जो कि इन सारे पानी, इन का सारा एक्सेस वाटर है, यहाँ आ गया। अब यहाँ से आप इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पानी आया, और यहाँ से आपने ये 14 लिंक और ये 13 लिंक, ये 12 लिंक और ये 13 लिंक और ये 14 लिंक, तो 12, 13, 14 देखेंगे फराक्का सुंदरबंस। तो फराक्का सुंदरबंस मतलब इसको आप सुंदरबंस की तरफ ले गए कुछ पानी को, और 13 गंगा दामोदर सुबर्णा रेखा, गंगा दामोदर सुबर्णा रेखा नीचे ले गए, और सुबर्णा रेखा महानदी, और इसको महानदी से मिला दिया। तो बेसिकली आप इसी जो एक्सेस पानी है, आप गंगा के द्वारा थोड़ा हम वेस्ट बंगाल की तरफ ले गए और थोड़ा हम महानदी ये नीचे की तरफ ले गए। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग करनी है,
ताकि जो वाटर डेफिसिट है एरिया वहाँ पे पानी पहुँचाया जा सके सरप्लस एरिया से। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में भी आप जानते हैं कि बहुत बाढ़ आती है। मैंने पिछली बार जिक्र भी किया था बिहार के फ्लड्स का पिछले लेक्चर में। तो इसमें भी एक काम किया जा सकता है कि बिहार जो गंगा का सारा पानी है सॉरी तो मैं आपसे बोल रहा था कि क्योंकि ये गंगा अगर आप देखेंगे सो दिस इज द रिवर गंगा, गंगा आया ये, दिस इज द गंगा। अब गंगा क्या होता है, गंगा में कोसी मिल गया, यहाँ पे ये बिहार का एरिया है, कोसी मिल गया या गंडक मिल गया या घाघरा मिल गया, तो इतनी सारी रिवर्स गंगा में मिलती हैं। और गंगा जब बिहार में पहुंचती है तो इतना पानी हो जाता है तो ये अपने तट को तोड़ तोड़ के बहने लग जाती है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि गंगा का पानी जो बिहार में फ्लो हो रहा है वो थोड़ा कम मात्रा में फ्लो हो, तो हम उत्तर प्रदेश से ही जब ये घाघरा और गंडक मिल जाती गंगा में, यहाँ पे कुछ एक्सेस पानी को अगर हम नीचे पहुंचा दें, यानी कि नर्मदा की तरफ मिला दें, यानी कि पहले तो केन बेटवा, ये देख रहे हैं आप केन बेटवा, ये पेनिनसुलर कंपोनेंट में आता है, तो हम अगले पेनिनसुलर में बात करेंगे। तो यहाँ पे मिला दें, केन बेटवा को में मिला रहे हैं, केन बेटवा को नर्मदा से जोड़ दें, तो बेसिकली जो एक्सेस वाटर है यहाँ के थ्रू यहाँ पे आप पहुँचा सकते हैं, नर्मदा में पहुँचा सकते हैं। अब नर्मदा में आप जानते हैं ऑलरेडी बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, तो वाटर रिजर्वेयर्स में आप पानी कलेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाता है सी में भी, तो इस तरीके से जो एक्सेस वाटर है आप सी में ड्रेन करवा सकते हैं गंगा का, बिहार में पहुंचने से रोक सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है बिहार में पहुंचने से रोक दीजिए, ताकि इंटरलिंकिंग के द्वारा जो ये मध्य प्रदेश का जो ये पार्ट है ये भी आप सिंचाई कर सकते हैं, और नर्मदा में मिलाएंगे तो एक्सेस वाटर नर्मदा में पहुंचेगा, तो ये आप अरेबियन सी में ड्रेन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। पेनिनसुलर कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं। सो पेनिनसुलर कंपोनेंट इज की जो साउथ इंडिया में जो लिंक है, जो कि आपको कनेक्ट करने हैं आपस में ताकि रिवर को इंटरलिंक कर पाए, तो दैट इज द पेनिनसुलर कंपोनेंट। नाउ दी सरप्लस वाटर्स ऑफ महानदी एंड गोदावरी विल बी ट्रांसफर्ड टू, जैसे मैंने बोला कि 6 अभी प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर पाइपलाइन है, जिसमें महानदी आपका एक तो प्रोजेक्ट है गोदावरी और कावेरी, एंड अनदर इज दिस वन महानदी एंड कृष्णा एंड कावेरी। सो गोदावरी विल बी ट्रांसफर्ड टू कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एंड वैगई। So Mahanadi and Godavari and Kaveri. So these two are the projects. So it has 4 subcomponent linkages. That is the Mahanadi and Godavari basins to Krishna Kaveri, जो हमने बात की थी, महानदी गोदावरी को कनेक्ट करो और गोदावरी और कावेरी को कनेक्ट करो। वेस्ट फ्लोइंग रिवर साउथ ऑफ टापी टू द नॉर्थ ऑफ बॉम्बे, केन रिवर टू बेटवा, जैसे मैंने बताया केन बेटवा, पार्वती कालीसिंध रिवर चंबल रिवर को कनेक्ट कर रहे हैं। सम वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो वेस्ट फ्लो कर रही हैं टू दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये देख लीजिए आप, मैं मैप के थ्रू आपको समझा देता हूँ पेनिनसुलर कंपोनेंट। सो दिस इज द पेनिनसुलर कंपोनेंट। तो जैसे मैंने बोला इसमें अभी एक तो केन बेटवा, सो दिस इज द केन बेटवा, आपने केन बेटवा को लिंक कर दिया। एक तो ये प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि गंगा यहाँ पे आ रही है, तो गंगा को आपको नीचे लेकर आना है नर्मदा पे। तो नर्मदा का एक प्रोजेक्ट है, जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो सो दिस इज द केन बेटवा, तो यहाँ से आप लेके आइए नर्मदा पे। अब इसमें क्या है ना, एक तो केन बेटवा हो गया, एक है दमनगंगा पिंजाल। सो दमनगंगा पिंजाल अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द दमनगंगा पिंजाल, तो यहाँ पे आपने दमनगंगा और पिंजाल आपने मिला दी। सो दिस इज द दमनगंगा एंड दिस इज द पिंजाल। सो दमनगंगा पिंजाल जो ये महाराष्ट्र वाले एरिया में, इनको आपने मिलाना है। पर तापी नर्मदा, तो दिस इज द पर तापी नर्मदा। सो दिस इज पार, दिस इज तापी, दिस इज नर्मदा, ये तीनों को मिला दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि यहाँ से आप नर्मदा पे मिल जाओ, जाके मिला दो। सो पर्वती, कालीसिंध, चंबल, ये तीनों को आपस में मिलाना है, पर्वती, कालीसिंध और चंबल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप नर्मदा पे पहुँच जाओ किसी भी तरीके से। तो ये एक प्रोजेक्ट होना चाहिए घाघरा, ये गंगा से नर्मदा मिलाने का, ये यहाँ पे नहीं है, ये होना चाहिए जो मैंने बताया। अगर आपको बिहार में फ्लड्स को बचाना है तो अगर आप नर्मदा में मिला दोगे तो यहाँ काफ़ी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं प्लस मल्टीपर्पज़ डैम्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आप वाटर को स्टोर कर सकते हो, और उसके अलावा जो एक्सेस वाटर है वो अरेबियन सी में आप फ्लो करवा सकते हो। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है केन बेटवा हो गया, परतापी गंगा हो गया, दमनगंगा पिंजाल हो गया। एक मैंने बोला था महानदी गोदावरी,
सो दिस इज दी महानदी। सो जो यहाँ पे एक्सेस वाटर आप ब्रह्मपुत्र का आपने महानदी तक ले गए थे, अब महानदी को आपने गोदावरी पे मिला दिया और गोदावरी को आपने कावेरी पे मिला दिया। सो दिस इज दी गोदावरी कावेरी, दैट इज द ग्रैंड एनीकट, पेन्नार पेलार कावेरी। सो एर्थ, अगर आप एर्थ देखेंगे, सो दिस इज दी एर्थ। सो यहाँ से आपने लेके गए एर्थ, सो गोदावरी, देन गोदावरी को आपने कावेरी में मिला दिया। तो बेसिकली जितनी भी रिवर्स है ना साउथ की, वो आपस में मिला सकते हैं आप, वो कावेरी में मिला दीजिए। कावेरी आप जानते हैं कावेरी किस तरफ फ्लो करती है आपकी, कावेरी आपकी सो दिस इज योर कावेरी रिवर। सो कावेरी आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, तो एक्सेस वाटर विल देन फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और नर्मदा में क्यों आपको लेके जाना था, नर्मदा में लेके जाएंगे आप तो आप इसको राजस्थान गुजरात में भी सिंचाई के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये वाटर ड्रॉट वाले एरियाज हैं। तो अगर आप नॉर्थ वाली रिवर्स को नर्मदा में मिला दें और महानदी में साउथ में ले जाएं कुछ पार्ट, और साउथ में आप इधर उधर फैला दें और नीचे कावेरी पे ले जाएं, तो इस तरीके से हिमालयन और पेनिनसुलर कंपोनेंट को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रपोज्ड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन हिमालयन एंड पेनिनसुलर कंपोनेंट। तो ये मैंने जस्ट एक मैप से बताया था, बता रहा हूँ कि ये बेसिकली आपका गंगा बेसिन है। तो मैं बता रहा था ये बिहार है, आप उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है आपका। तो गंगा में यहाँ पे घाघरा मिल जाती है, तो यहाँ पे जैसी घाघरा मिलती है यहाँ से आप लेके चाहिए नर्मदा, और नर्मदा से फ्लो करा के आप लेके जाइए यहाँ गुजरात या राजस्थान, ऊपर उस वाले मध्य प्रदेश वाले एरिया, जो भी सूखे वाले एरिया, और महाराष्ट्र में नीचे ले जाइए। तो काफ़ी कुछ आप सिंचाई कर सकते हैं। और बाकी आप कुछ पानी आप ब्रह्मपुत्र का लेके आइए महानदी में, महानदी से आप नीचे गोदावरी और गोदावरी से कावेरी ले आइए। तो इस तरीके से पूरी रिवर्स को आप इंटरलिंक कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग? एडवांटेजेस क्या है? कंट्रोल फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। डेफिनेटली फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया, ड्रॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिए, दैट इज बोथ, इट विल कंट्रोल बोथ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। हाइड्रो पावर जनरेशन, ऑब्वियसली क्योंकि आप डैम्स इंटरलिंक करेंगे तो आप बहुत सारे डैम्स एंड रिजर्वर्स बनाएंगे ताकि आप हाइड्रो पावर जनरेशन कर पाएं। सो द बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड रिजर्वर्स आर की कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। About 35,000 megawatt of total power could be generated if the whole project is implemented. Thus, river interlinking has the potential to resolve the electricity issues of the industrial, agricultural as well as rural households. ठीक है, तो हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं। फ्लो वाटर इन ड्राई सीजन, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वर्स ड्यूरिंग मानसून एंड रिलीजिंग इट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन विल फैसिलिटेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्राई वेदर फ्लो इन दीज रिवर्स। कि इन रिवर्स में जो ड्राई में ये रिवर्स सूख जाती हैं, साउथ इंडिया की बहुत सारी रिवर्स, तो उनमें आप फ्लो इंश्योर कर सकते हैं। दिस विल एड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इरिगेशन बेनिफिट्स इन ड्राई एरियाज। कमर्शियल बेनिफिट्स क्या है? इन द लॉन्ग रन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विल हैव कमर्शियल बेनिफिट्स। क्या? कैनॉल्स कैन बी यूटिलाइज एज इनलैंड वाटरवेज विच विल हेल्प इन फास्टर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोरओवर रूरल एरियाज विल डेवलप विद डाइवर्स इनकम सोर्सेज सच एज फिश फार्मिंग। आप ये सब भी कर सकते हैं, कमर्शियल बेनिफिट्स। दिस वुड हेल्प इन पोल्यूशन कंट्रोल, नेविगेशन, फिशरीज, ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सारे एडवांटेजेस हैं, अंडरस्टूड है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप देख लीजिएगा इनको। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल भी करते हैं, ये भी आप देख लीजिए, पोल्यूशन कंट्रोल, ये काफ़ी एडवांटेज है इसका पोल्यूशन कंट्रोल में भी। नेविगेशन आप जानते हैं, इधर से उधर जाना, फिशरीज ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। Now what are the issues which are linked involved in river interlinking? एडवांटेजेस हमने देख लिए, अब इसके इश्यूज क्या है? ये इंटरलिंकिंग करने में दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें क्या है मतलब दिक्कतें क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस है रिवर इंटरलिंकिंग में, वो हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इश्यूज। क्या इश्यूज हैं? कि रिवर जो है ना, दैट दे यूज टू चेंज देयर कोर्स इन 70 to 100 years एंड दस वंस दे आर लिंक्ड, फ्यूचर चेंज ऑफ कोर्स कुड क्रिएट ह्यूज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फॉर दी प्रोजेक्ट। अब जैसे आप जानते हैं कोसी को भी माना जाता है कि ये अपना रास्ता बदल जाती है ना। कोसी को तो आप बहुत ज़्यादा, कोसी तो नोटोरियस है इस चीज़ के लिए। ब्रह्मपुत्र के बारे में माना जाता है, तभी ब्रह्मपुत्र में डैम्स का कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं या फिर एम्बैंकमेंट्स नहीं कर पाते हैं कंस्ट्रक्ट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखा गया है कि ये सब रिवर्स अपना कोर्स बदल जाती हैं कुछ सालों में, 70 से 100 सालों में। तो कोई भी रिवर इंटरलिंकिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने इंटरलिंक किया और इन्होंने अपना कोर्स बदल दिया तो रिवर इंटरलिंकिंग फेल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज एक्वा लाइफ।
एक्वा लाइफ का भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक्वा मतलब जो पानी में रहते हैं जीव जंतु। So a number of leading environmentalists are of the opinion that the project could be an ecological disaster. There would be a decrease in downstream flows, resulting in reduction of fresh water inflows into the seas, seriously jeopardizing aquatic life. तो बेसिकली इससे ये डर है इन्वायरमेंटलिस्ट को और जो एक्सपर्ट्स हैं कि इससे जो फ्रेश वाटर फ्लो हमारे जो सी में होता है इसको कहीं ना कहीं कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए एक बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। सो इट मे कॉज डेंजर फॉर द एक्वेटिक लाइफ due to decrease in the freshwater flow due to the impact of these interlinking of the rivers. तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू समझा जा रहा है। देन अनदर इज डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियसली जब आप लिंक करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो जो भी फॉरेस्ट वगैरह है ऑब्वियसली आपको डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे करना पड़ेगा। एरियाज कुछ सबमर्ज हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, रिजर्वर जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो काफ़ी सारा एरिया पानी में सबमर्ज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का। डर्टिंग ऑफ क्लीन वाटर, वही जो मैंने कहा था फ्रेश वाटर की सप्लाई माना जा रहा था कि इससे फ्रेश वाटर की सप्लाई होगी, बट इससे बहुत जगह पे फ्रेश वाटर की सप्लाई जरूर हो पाएगी जहाँ पे ऑब्वियसली पानी की कमी है, बट डर्टिंग भी हो सकता है पानी, क्योंकि एक रिवर का गंदा पानी दूसरे फ्रेश वाटर रिवर में मिलेगा तो गंदगी फैला सकता है। सो एज द रिवर इंटरलिंक, रिवर्स विद डर्टी वाटर विल गेट कनेक्टेड टू रिवर्स विद क्लीन वाटर, हेंस डर्टिंग द क्लीन वाटर, डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल फ्लो। जो एक अपना नॉर्मल फ्लो है उसको डिस्टर्ब उसका हो सकता है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ऑब्वियसली जो ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज में जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, अगर आप उनके ऊपर कुछ इंटरलिंकिंग करे हुए कुछ दिक्कत आएंगी उन पे तो ट्रांसनेशनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विल लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स नॉट ओनली एट द स्टेट लेवल बट ऑल्सो ऑफ द इंटरनेशनल लेवल। सम ऑफ द रिवर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर स्कीम्स has international implications with a possible impact on countries such as Bhutan, Nepal, Bangladesh. Bangladesh strongly opposes the move to transfer the Brahmaputra water to Ganga, जो मैंने संकोच तीस्ता और उसकी बात की थी कि उसका पानी जो है गंगा में पहुंचा दो, तो बांग्लादेश स्ट्रांगली अपोज करता है। Therefore, water transfer in the Himalayan component needs to consider the effects on neighboring countries. तो हिमालयन में तो बहुत दिक्कत है इस टाइप की कि क्योंकि हमारी जो हिमालयन वाली जो रिवर्स हैं वो क्योंकि ऐसी रिवर्स हैं जो कि ट्रांसनेशनल बाउंड्री से निकल के आती हैं और ये ट्रांसनेशनल बाउंड्री में फ्लो करती हैं, तो हिमालयन रिवर्स को लिंक करने में इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कैन नॉट कंट्रोल फ्लड्स, और जैसा माना जा रहा है कि इंटरलिंकिंग से कंट्रोल फ्लड हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डाउटफुल है वेदर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स कैन प्रोवाइड फ्लड प्रूफिंग। Theoretically, a large reservoir can help moderate floods in downstream areas. However, in the case of India, experiences have been different. Big dams such as Ranganadi Dam, Damodar Dam, the Farakka and Bansagar Dam, and the Hirikut Dam have brought avoidable flood disasters. इनकी वजह से जो फ्लड डिजास्टर जो लग रहा था कि कम हो जाएगा असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो ये कम नहीं हुआ। ये और कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि अगर डैम्स कंस्ट्रक्शन हुआ है क्योंकि हमारे बहुत पुअर डैम मैनेजमेंट है इसकी वजह से, जबकि हमारा जो फ्लड है वो बढ़ गया। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात की थी कि इंटरलिंकिंग से इशू नहीं है। इंटरलिंकिंग करने के बाद आप जो डैम्स और रिजर्वोयर्स कंस्ट्रक्ट करोगे उनको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है, टाइमली उनको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, और डैम्स को प्रॉपर मटेरियल के साथ बनाना चाहिए और एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन डैम्स का होना चाहिए। और साथ में क्या होता है कि डैम्स में जब एक्सेस वाटर आता है तो छोड़ दिया जाता है क्योंकि डैम्स को टूटने से बचाया जाता है, जबकि डैम्स को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो इतना वाटर तो स्टोर कर ले कि हमें पानी छोड़ना ना पड़े, जिससे डाउनस्ट्रीम एरिया सबमर्ज ना हो जाए। तो ऐसा नौबत ना आए, फ्लड ना आ जाए, इसकी वजह से डैम्स को कंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली हाइट के साथ डैम्स कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। जैसे सरदार सरोवर ने बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल रहा है हमारे देश में सरदार सरोवर डैम, कि इसने ना केवल नर्मदा का पानी गुजरात के एरियाज में पहुंचाया जो कि बहुत ड्रॉट प्रोन एरियाज है, उसके अलावा जो नर्मदा जो फ्लड कोज करती थी जो एडजॉइनिंग एरियाज में, वहाँ पे फ्लड को प्रिवेंट किया और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की, वाटर का स्टोरेज हुआ। तो मल्टीपर्पज डैम में कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। नाउ हाउ टू मूव अहेड विद ILR। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में जो इश्यूज हम देख रहे हैं,
अब कैसे इनको सॉल्व करना है या कैसे अब ILR के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लिंक करना है। तो इन दी वेक ऑफ राइजिंग कंसर्न्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, द आइडिया ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड owing to the non-reversible nature of the project. It is important to do more detailed studies regarding the pros and cons of the project before moving ahead. Obviously, till then it is important that the government focus on following alternative mechanisms such as, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत फिजिबिलिटी स्टडी करनी होता है। आप देखिए ना, अभी तक चल रही है फिजिबिलिटी स्टडी, जो कि इतना भी नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। और जब तक अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बताया कुछ नहीं हुआ है इसके ऊपर काम, तो जब तक नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव मेजर्स यूज़ करने चाहिए। क्या यूज़ करने चाहिए? सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड एंड एडिक्वेटली फंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोग्राम टू रिवाइटलाइज, रेनोवेट एंड रिपेयर एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज टैंक्स। तो एग्जिस्टिंग जो वाटर बॉडीज हैं, एग्जिस्टिंग टैंक्स हैं, उनको रेनोवेट करना है, उनको रिपेयर करना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का प्रोग्राम के अंतर्गत जो ये रिपेयरिंग है, वो उसको एडिक्वेटली एक्सपेंड करना है और फंड करना है। डीसिल्टिंग, इसमें क्या करना है? डीसिल्टिंग ऑफ वाटर बॉडीज को डीसिल्टिंग करना है। जैसे ब्रह्मपुत्र की हमने बात की थी, क्योंकि रिवर जो हिमालयन रिवर्स हैं बहुत सारा सिल्ट लेकर आती है अपने साथ, इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, पॉइंट्स एंड रिजर्वोयर्स, इन सब का डीसिल्टिंग करना है। और एम्बैंकमेंट्स को आपको वो करना है, रिपेयर करना है, जैसे मैंने आपको बात की थी। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 सर्कुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो अभी हो गया है, विच इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल स्टेट्स इफेक्टिवली। रिवाइविंग लोकल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन, इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आपको पानी को टैप वाटर करना है, पानी को यानी कि आपको स्टोर करना है थ्रू वाटरशेड डेवलपमेंट, चेक डैम्स के थ्रू आपको स्टोर करना है इन रेनफेड एरियाज एंड लिंक ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट टू एक्वेफर मैपिंग। तो एक्वेफर मैपिंग यानी कि ग्राउंड वाटर को आपको के साथ लिंक करना है, और जो भी एक्सेस वाटर है ग्राउंड वाटर में पहुंचाना है, और जहाँ पे बरसात हो रही है वहाँ से स्टोर करके ग्राउंड वाटर को आपको रिचार्ज करना है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला आपको पिछले लेक्चर में ही कि आपको ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप क्रॉपिंग स्कीम आपको यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पे पानी की कम से कम वेस्टेज हो, पानी को भी हमें बचाना है। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज टू मीट ए मेजर शेयर ऑफ देयर डिमांड थ्रू रिसाइकल्ड वाटर। ओके, improved water use efficiency, incentivize the wider adoption of sprinkler and drip irrigation by diverting resources otherwise used to subsidize power and surface irrigation। इन सब में जो हम जो खर्चा करते हैं उसकी बजाय हमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन को हमें लॉन्च करना चाहिए, ताकि हम वाटर यूज़ को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू एनकरेज बिहेवियरल चेंजेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी को एंगेज करना इन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अंदर अटल भूजल योजना। भूजल योजना के अंतर्गत आपको, अटल भूजल योजना के अंतर्गत आपको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना है, और भूजल को आपको रिचार्ज करना है, और साथ में कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, उसमें पार्टिसिपेट करवाना है। उसके अलावा गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू इट्स मोर क्रॉप पर ड्रॉप मिशन, यानी कि वही जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंकलर एंड ड्रॉप इरिगेशन आपको स्कीम यूज़ करनी चाहिए। एंड वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स शुड नॉट बिकम वाटर एक्सपोर्टर्स ड्यू टू द क्रॉप्स दे कल्टीवेट। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे पानी की कमी है वो वहाँ पे ये स्कीम आप लॉन्च कर दो, और इसमें जो पानी बचेगा वो आप एक्सपोर्ट करें पानी, वो नहीं होना चाहिए। पानी को आपको स्टोर करके रखना है, ताकि सूखा पड़े तो आप पानी को यूटिलाइज कर पाएँ, और पानी कम है तो आपको ड्रॉप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन स्कीम टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, जिसमें पर क्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो है ये मिशन है, जिसमें ज़्यादा क्रॉप मिलेगी आपको कम ड्रॉप में। इसके अलावा ए वेल इन्फॉर्म्ड वाटर पॉलिसी विल हेल्प टू क्लोज गवर्नेंस गैप। जो मैंने कहा नेशनल वाटर पॉलिसी में जो भी गैप्स हैं वो आपको फिल करने चाहिए, और एक ऐसी वाटर पॉलिसी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, एक ऐसी, वहाँ पे मैंने नेशनल फ्लड पॉलिसी की बात की थी, तो एक ऐसी पॉलिसी आपको लॉन्च करनी चाहिए
जहाँ पे जो भी ये स्कीम्स मैंने आपको बताई कि आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, रिजर्वर्स का कंस्ट्रक्शन करना है, मल्टीपर्पज़ डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना है, वाटर को आपको एक्सपोर्ट नहीं करना जहाँ पे वाटर की कमी है, और आपको स्प्रिंकलर ड्रॉप इरिगेशन को यूज़ करना है, पानी को आपको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। ये सब जो भी टेक्निक्स है आपको यूज़ करनी है, यूटिलाइज करनी है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, वाटरशेड डेवलपमेंट करना है। ये सब टेक्निक्स वाटर पॉलिसी का पार्ट होनी चाहिए, और वाटर पॉलिसी एक ऐसी आपको वाटर पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए ताकि और उसके ऊपर कानून बनाना चाहिए हमारे देश में। पानी क्योंकि स्टेट है तो पार्लियामेंट नहीं बना सकती, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बात की थी कि वाटर शुड बी मूव टू कॉन्करेंट लिस्ट, और हमारे पार्लियामेंट को एक वाटर पे कानून बनाना चाहिए ताकि ये सब हर स्टेट को इसके ऊपर कानून बना के स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए देना चाहिए, और जो स्टेट्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ना करें उन पे पेनल्टी और फाइन लगना चाहिए ताकि ये ताकि जो स्टेट्स इम्प्लीमेंट ना करें उनके ऊपर ये प्रेशर रहे कि वो इसे इम्प्लीमेंट करें, पानी को बचाएं और पानी को स्टोर करें, और ऐसी टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बेसिकली जब तक नहीं होती तब तक कम से कम हमारी गवर्नमेंट इतना तो काम करे। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स तो हम जान ही रहे हैं कि फ्लड को भी प्रिवेंट करेगी और साथ में ड्रॉट को भी प्रिवेंट करेगी। फ्लड कहा जाता है कि फ्लड प्रिवेंट नहीं कर पाई है इंटरलिंकिंग, लेकिन ये इंटरलिंकिंग हुई ही नहीं है, केवल अभी डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इंटरलिंकिंग केवल यही नहीं है कि आपने डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया, आपको पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ आपको रिजर्वर्स और लार्ज साइज ऑफ रिजर्वर्स का आपको कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पे आप पानी स्टोर करें। उसमें उसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने बायोस्वेल्स की बात की थी लास्ट लेक्चर में, वो भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है रोड साइड पे। कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि उसमें पानी स्टोर करके आप जो है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर पाएँ। सो इन दिस वे आई विल एंड माई इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स लेक्चर। तो उसमें ज़्यादा आपको बस इतना ही समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या 6 प्रोजेक्ट्स अभी गवर्नमेंट जिन पे अभी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है, और हिमालय और पेनिनसुला कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए आपको कि मैंने जैसे बात की कि गंगा में मिला दो ब्रह्मपुत्र का पानी, और गंगा का पानी आप नर्मदा में लेकर चले जाओ, और नर्मदा से आप महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई करने के लिए लेके जा सकते हो। उसके अलावा महानदी ले जाओ, और महानदी से गोदावरी और कावेरी पे ले जाओ। तो ये सब आपको इंटरलिंकिंग में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस आई एंड माई लेक्चर। सो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक दिस लेक्चर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़, and kindly share it my lecture to as many people as possible. Thank you so much.